So, who is this wonder kid? Whenever this 15-year-old takes the field, the world watches him, and he has taken the world of cricket by storm. Who is Vaibhav Suryavanshi? Where did this kid come from? And in the search of these answers, we have traveled all the way from Kolkata to here in Tajpur, Samastipur. And behind us is the residence of Vaibhav Suryavanshi and the same nets where he honed his skills to become one of the most promising, exciting, and devastating youngster with the bat on in the cricket world. Devashishda, we are here, and it's a village. It's not a city. It's on the in the outskirts of Patna, and we have to travel. We had to travel for around 3 hours to reach here from Patna, and it feels like the roots from where this kid has come. It feels like another story of rags to riches. Yeah, absolutely, and you can see the popularity the youngster has gained in the last 1 year or so. Means obviously we asked in one of the crossings in Tajpur, and everyone knows by his name, Vaibhav Suryavanshi. We just asked where is Vaibhav Suryavansi's house, and it literally taken just 1 minute to show guide us the way. And here we are, the pink painting on the house resembles Rajasthan Royals, and this is the same turf wicket. There is one turf wicket and one concrete wicket where his father gave his early lessons of cricket. Why? Absolutely, and in this video, you will see us traveling to places where Vaibhav Suryavanshi honed his cricketing skills. We will talk to his coaches, Manish Kumar Ojha, Ashok Kumar. Will talk to his Bihar teammates, where he made his first-class debut and is again has taken the domestic cricket by storm as well. So we will track his entire journey from the roots, from where he became Vaibhav Suryavanshi, and of course, now as people are saying here, even in his locality, that sky is the limit for him. There is no ceiling for him, and we will search for those exact answers. Where did Vaibhav Suryavanshi come from? What is his ceiling? Is he India ready? So yes, stay tuned with us in this journey as we track Vaibhav Suryavanshi's journey from this particular residence here in Tajpur, Samastipur to the heights of the cricketing world. So in Patna, the Gen Next Academy run by Manish Kumar Ojha has become the bedrock of Bihar cricket. Many cricketers are coming here since the emergence of Vaibhav Suryavanshi, and mostly the 7 to 10-year-old kid group is wanting to become the next Vaibhav Suryavanshi. Devashishda, you have seen the practice here, all the little kids running around trying to fine tune their game, learn the new techniques. You have seen some uh, elderly players as well. So how do you see this area? It is in between the farmlands here at the in Patna. So how do you see this? Yeah, I think what was very interesting from your interaction with both the coaches is that they did not want to tweak his technique, and that's the best part from the interaction, because I mean, they want to play his live it his natural game. And that's the best part. Obviously, he was with Rajasthan Royals as well, where he had Rahul Dravid and Jubin Bharucha as well. So I think none of the coaches with Vaibhav Suryavanshi has tried to tweak his technique or his attitude. Means let him play, let him enjoy, and that's the best part. And what's the best part of the interactions are? We spoke to Manish Kumar Ojha, we spoke to Ashok Kumar as well, both his childhood coaches. But what Manish ji said was that he has similarities with MS Dhoni. Manish has spent a lot of time with MS also during his playing days, and what he said was that the mindset and the clarity that they both have in their game in the similar age is staggering. So maybe
from this area of Bihar, Jharkhand, UP, we are seeing the next emergence. I won't say MS Dhoni, he's still a 15-year-old kid, but we are seeing a miracle player, as Manish ji said. Yeah, absolutely, absolutely. And the journey means from coming from all the way from Tejpur, means his father used to drive him when he was a little kid, 12 years old. This is such a heartwarming story, and the father and son used to come here, and Vaibhav's mother used to prepare the food. They used to have their food here and stay here till the evening, and then go back, and three times in a week. And there has to be a lot of sacrifices, Shubha. Means obviously it's not just you make a Vaibhav Suryavanshi overnight. Means it's the hardships, it's the sacrifices of his parents, Sanjeev Suryavanshi, his mother, his coaches here, his earlier childhood coach Brijesh Jha. So it's a collective effort. Obviously, all credit also should be given to Vaibhav as well, because it is he, means his hard work, his honesty, and the best part is his humbleness. Right. Right, as Vaibhav takes the IPL by storm, let's take a look at what this Gen Next Academy looks like, and of course. सो हर हीरे को परखने के लिए एक पारखी की ज़रूरत होती है, और वैभव सूर्यवंशी के पीछे हमारे साथ है समर कादरी जी। ये आपने कहाँ से ये हीरा ढूंढा, क्या कहानी है? क्योंकि पहला जो आपने उनको स्काउट किया है, आप बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा कि स्काउट आपने पहला किया है, बट आपको कहाँ से मिला ये लड़का? एक प्रैक्टिस मैच हमने खेला था, तो वो ऑलमोस्ट 11-12 साल का होगा। तब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था जस्ट रिटायरमेंट से पहले, तो उसे देखा मैंने, और सब ये बोल रहे थे कि यार ये लड़के को देखना, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि अच्छा 11-12 साल का लड़का है, क्या ही अच्छा होगा, कितना ही अच्छा होगा। जब लेकिन मैंने उसे देखा, मेरी बॉलिंग पे उसने कवर्स के ऊपर से छक्के मारे, ठीक है, फिर आड़ों पे छक्का मारा। तो मैंने बोला यार ये लड़का तो अलग लग रहा है। फिर मैंने 1-2 मैच और खेले, तो समझ आया कि नहीं, ही इज़ डिफरेंट। और फिर जब वो अंडर 19 में गया, अंडर 19 में उसने झारखंड के अगेंस्ट एक 150 प्लस रन किए। और मुझे, मेरे जो टीममेट्स थे झारखंड के, वो कोच भी थे, शांग जग्गी वो कोच थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कौन लड़का है बिहार का जो ऐसा खेलता है, लग रहा है कि T20 खेल रहा है टेस्ट में। तो मैंने बोला कि नहीं, ही इज़ रेयर। तो वहीं से हमने पिक किया था उसे। आपका जो एक्सपीरियंस था विद राजस्थान रॉयल्स, आप नेट बॉलर रहे, आपने टाइम बिताया है उस कैंप में, सजेशन जब आपने दिया था कि यार एक 11 साल, लोग सीरियसली नहीं लेते, मैं अगर आपके पास आता और बोलता हूँ एक 8 साल का बच्चा, आप बोलोगे ठीक है ले आ, देख लेंगे, ऐसा ही है, सीरियसली आप नहीं लोगे। आपने जब फर्स्ट वर्ड पुट इन किया तब क्या रिएक्शन? जुबीन सर को जब मैंने कॉल किया कि सर एक ऐसा लड़का है, आप देख सकते हो, तो वो तब तक अंडर 19 इंडिया खेल चुका था, थोड़ा बहुत नाम आ गया था उसका, पर उनको विश्वास है मुझ पे, और था मुझ पे कि नहीं, समर जो भी बोलेगा वो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 2010 से साथ में जुड़ा हूँ। तो वो एक बिलीव था, उनको ट्रस्ट था कि हाँ समर जो बोलेगा वो सही रहेगा। तो मैंने बोला कि सर इसको आप देखिएगा और इसे छोड़िएगा मत। मैंने ऐसे ही बोला कि सर इसे छोड़िएगा मत, ही इज़ वेरी रेयर, ही इज़ वेरी रेयर। तो इसमें उन्होंने मेरी बात को माना, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री नाउ। रेस्ट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री अब लिख रहे हैं अभी। बट सर जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब कवर करने जाते हैं कि लोग बुमराह को टच नहीं करते, लोग हेजलवुड को टच नहीं करते, कि इनके 4-7-8 ओवर है, निकाल लेते हैं, बाकी बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, बट ये बंदा पहली बॉल पे छक्का, हेजलवुड को एक एक ओवर में 2-2 चौके, एक एक छक्का मार रहा है। सरप्राइज्ड होते हो आप देख के? नहीं, मैं सरप्राइज़ इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि ये बचपन से ही हमेशा यही बोलता था कि भैया बड़े बॉलर्स को ही मारना है मुझे। ये वाली जो मेंटालिटी है, मैं क्योंकि खुद दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में खेला हूँ, तो वहाँ पे भी यही मेंटालिटी है कि बड़े जो भी इंडिया प्लेयर्स हैं, जो स्टेट खेल रहे हैं, उन्हें ही मारना है। तो यही इसका यूएसपी है कि ये बड़े बॉलर्स को मारने में उसे बहुत मज़ा आता है कि भैया मैं आउट हो जाऊँ लेकिन मैं इन्हें ही मारूँगा, तभी नाम होगा मेरा। तो ये है उसका, यही मेंटालिटी, और ये अच्छी मेंटालिटी है और होना भी चाहिए। मैंने मनीष सर से भी ये पूछा, अशोक सर से भी ये पूछा कि सीलिंग क्या है? आपने देखे हुए प्लेयर्स बनते हुए देखे, आपने आपके साथ खेलते हुए, इंडिया खेलते हुए आपने देखा है, बट वैभव सूर्यवंशी का सीलिंग क्या है? कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि अभी मतलब उस उम्र है, 20 साल आराम से इंडिया खेल सकता है। और मैंने हमेशा एक ट्वीट भी किया है कि ये जनरेशनल है, कि वो चेंज करता है। एक जनरेशन होती है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर की जनरेशन आई, बिल्कुल। ठीक है, फिर
विराट कोहली ने वो जनरेशन चेंज की, फिर वही अब वैभव सूर्यवंशी भी वही काम करने वाले हैं कि आज के बच्चों को वो बिलीफ दिला देगा कि मैं 11-12 साल में भी खेल सकता हूँ। हाँ। और आप तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो, बच्चों में, यंगस्टर्स में वो चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ विजन देखा है कि अब लोग सपना देखना स्टार्ट कर चुके हैं? क्योंकि आपके टाइम में बिहार क्रिकेट काफ़ी अलग था, अब ऑफ कोर्स सपोर्ट भी मिल रहा है, चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, बट लड़कों में जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनमें अब विजन में चेंज दिख रहा है आपको? बहुत विजन में चेंज है। और जैसे मैं यहाँ ईशान किशन एकेडमी में हूँ, तो जो जिनकी एकेडमी है ईशान किशन, उनका भी यही मानना है कि बिहार में टैलेंट बहुत है। तो हमारा विजन ही है कि यहाँ से लड़के निकले। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मतलब खान है टैलेंट का, आप अगर निकालने जाओ तो गांव-गांव से लड़के मिलेंगे। तो ये यहाँ के लड़के खेलने के काबिल हैं और वैभव जैसे और भी टैलेंट है जो हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं और ट्राई करेंगे कि खोजें। समर भाई, जब आपने एक ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब वो गए, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल दिया, तब जुबिन सर ने फ़ोन किया था आपको कुछ रिव्यू देने के लिए कि क्या लड़का भेजा है? नहीं, मैंने सर से पूछा था, मैंने ही पूछा था, मैंने कॉल किया कि सर कैसा लगा? बोला कि अरे यार ये क्या बंदा है? ऐसे ही बोला उन्होंने कि क्या बंदा है ये? पहले ही 3 बॉल 3 छक्के मार दिए उसने। सब उस वक्त राहुल सर भी थे, तो राहुल सर खड़े हो गए, बोले ये कौन लड़का है यार, ये ऐसे मार रहा है। उसके बाद फिर जब इसका ऑक्शन हुआ तो वैभव ने मुझे कॉल किया कि भैया थैंक यू, आपने मुझे भेजा ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। और ही इज़ जनरेशनल टैलेंट, वो इसमें कोई अनडाउटेबली मतलब वैसा ऐसा मारते हुए मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। वो तो बहुत साल पहले एक MS धोनी आए थे जो हाँ। जिनकी कहानी हम सुनते हैं कि टेंटों के बाहर मारते थे, अब स्टेडियम के बाहर IPL में हम देख रहे हैं कि एक 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ से बिहार क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी ने जो एक स्तंभ रखा है कि यहाँ से आप लड़के निकाल सकते हो, आप जाते हो आगे चलते हुए देख रहे हो कि IPL हो गया या इंडियन क्रिकेट हो गया, कि बिहार एक स्टेट जो कि अपने पॉलिटिक्स के लिए, UPSC के बच्चों के लिए ज़्यादा जाना, लिट्टी चोखा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, कि अब क्रिकेट के लिए भी धीरे धीरे जाना जाएगा? क्रिकेट के लिए देखिए बिहार में क्रिकेट का टैलेंट तो है और वैभव के आने से लोगों की आंखें खुल रही कि नहीं यार, यहाँ सिर्फ UPSC IAS नहीं बनते या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ क्रिकेटर्स भी हैं, स्पोर्ट्स कल्चर भी है। तो और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ बना रही है और एक राजगीर में स्टेडियम भी बनाया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में ऐसे लड़के बहुत निकलेंगे जो IPL खेलेंगे, जो आपको नेशनल टीम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ईशान किशन का विजन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। वो है वैसे भी बिहार से, खेला है अपना क्रिकेट झारखंड से है, बट यहाँ पे पटना में अपना एकेडमी क्यों सेटअप किया? आपसे जब बातचीत हुई इसके बारे में तो क्या विजन था उसका? देखिए झारखंड, मैं भी झारखंड से ही खेला हूँ, ठीक है, और ईशान भी झारखंड, तब यहाँ एसोसिएशन नहीं हुआ करती थी। तो जब और ईशान है पटना का ही, ठीक है, तो बचपन से साथ ही रहे हैं, वो हमेशा जूनियर रहा है। तो वो खुद ही बोलता था कि भैया बिहार से लड़के निकालने हैं, क्योंकि झारखंड में टैलेंट है तो यहाँ से भी तो टैलेंट निकले। तो इस वजह से ये विज़न है उनका कि सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ईशान किशन एकेडमी होनी चाहिए जहाँ जहाँ लड़के निकले। और बिहार से स्पेशली बहुत ध्यान देता है वो, हर तीसरे चौथे दिन पे कॉल कर लेता है कि भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो विज़न है ना उसका, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि हाँ यहाँ से लड़के IPL इंडिया खेले। ये हमेशा ये पूछता है कि भैया कोई है ऐसा टैलेंट जो आगे चल के IPL खेले या इंडिया खेले। ये तो कमाल का विजन है, और ऐसे विजन आई थिंक आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे स्काउट्स, आप जैसे कोचेस, आई थिंक बिहार क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जाओगे। थैंक यू समर भाई आपके टाइम के लिए, Thank you so और much. मज़ा आया बात करते Thanks. हैं।
the interactions with Manish Kumar Oja and Ashok Kumar, the coaches of Vaibhav Suryavanshi. देखिए वैभव को जिस प्रकार से दिनेश क्रिकेट अकेडमी में जो फैमिली कोचिंग हुआ है, जिस प्रकार से इसका नर्सिंग हुआ है, उसमें मनीष का बहुत बड़ा रोल है, रॉबिन का बहुत मेहनत है। और आज के डेट में आप जितने भी स्ट्रोक्स देख रहे हैं, उस स्ट्रोक्स पे बहुत काम किया गया था इस अकेडमी में बचपन से ही। वैभव का खेलने का अंदाज देख रहे हैं आप, वो ऐसा नहीं कि वो एग्रेसिव है, उसका खेलने का अंदाज ही वही है। अगर वो लाल बॉल का गेम हो या व्हाइट बॉल का गेम, मेरा मानना है कि हमेशा हम लोगों ने यही बताया कि गेंद के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक कलर है, किस लेंथ को मारना है उसको, वो फैक्टर है, उसको जज करो, उसको मारो। आज वैभव को जो तुम देखते हैं मारते हुए, तो छोटे से ही वो ऐसा एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। हमेशा पूछता भी रहता था, थोड़ा टारगेट भी देते थे उसको तरीके का, वैभव रन बनाना तेरा टारगेट नहीं है, तू जाके 100 बॉल खेल के इस इनिंग में दिखा। शायद ये एक आधा इनिंग मुझे याद होगा या वो भी नहीं, अभी तक वैभव ने किसी भी लेवल पे वो 100 बॉल नहीं खेले, लेकिन इतने बड़े बड़े सेंचुरी लगा चुका है, फिर भी इसके 100 बॉल नहीं पूरे हुए हैं। तो ये कोच का अभी भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि वैभव 100 बॉल तो खेल कम से कम। तो हम लोग का इंतजार है। वैभव जब अंडर 16 में ट्रायल के लिए आया था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था बिहार क्रिकेट के लिए, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे प्रेसिडेंट सर राकेश तिवारी जी, उनको रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने कि इसको टीम में मौके नहीं मिल रहे हैं कोविड की वजह से, प्लेयर अच्छा है, इसको अंडर 18 में दीजिए। और बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, प्रेसिडेंट को, उन्होंने एग्री किया, इस बच्चे पे भरोसा दिखाया, उसको अंडर 19 की टीम में भेजा। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अंडर 19 में जब आया तो पहले से तो बैटिंग देखा हुआ था वहाँ का, टीम में आया, तो बीइंग टीम के कोच मुझे डिसीजन लेना था कि बच्चे को खिलाना है या नहीं खिलाना। पहले दिन बैटिंग दिया, 2 दिन का नेट्स मिलता है, पहले दिन बैटिंग दिया तो बैटिंग करके तो नॉर्मल ट्रेनिंग वॉर्निंग होता है क्योंकि दूसरा दिन हमने उसको में बैटिंग नहीं दिया, केवल ड्रेस करने के लिए कहा उसको कि जा कम से कम 100 बॉल बैकफुट 100 बॉल बैकफुट करो, फील्डिंग करो। थोड़ा निराश था वो कि आज मुझे बैटिंग नहीं मिला नेट्स में, मैं कहा तो मैच नहीं खेला हूँ। शायद कई जगह उसने बता भी दिया कि तो मैच नहीं खेल रहा, आगे बैटिंग मिला नहीं। फिर रात में जब डिनर कर लिया तो उसको मैंने बुलाया रूम पे बुला के पूछा कि घर में बात हो गया मोबाइल से? हाँ सर। भी पापा से? सर हो गया सर। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके दे दिया मुझे, उसने दे दिया। जाने लगा तो बुलाया उसको कि वैभव उसका मैच खेलेगा। उसका जो रिएक्शन था, सर मुझे खिलाइए ना, मैं अकेले मैच जिता कर दूंगा। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो उसका बॉडी लैंग्वेज था और जो उसके जो कॉन्फिडेंस उसका दिख रहा था उसके चेहरे की, और एक कोच को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता कि ये मैच के लिए कल का मैच के लिए तैयार है, और केवल तैयार ही नहीं, वो जिताने के लिए तैयार है, वो अकेले जिताने के लिए तैयार है। आप विश्वास करोगे, वो अगला मैच खिला के शाम खिलाड़ी या नींदी बनाया था उसने और अकेले मैच जिताया था। तो मैंने कई सेलेक्टर को फोन किया, आज रेफरी को बताया यार ये लड़का बहुत जबरदस्त अच्छा लगा, बोला यार दिल्ली का लड़का है, उसने तो मानने से गाड़ी लगी है कि बिहार से लड़का है, नहीं बिहार का राजपुर का जगह है। तो ऐसा सेलेक्टर थे उस समय शरद जी, उनको वीडियोस भेजे इसने क्लास रेफरी ने, और विष्णुवर्धन का मैच विष्णु ने सर को फोन भी किया। सर अगले दिन फिर वहाँ से नेशनल सेलेक्टर भेजे, मेंबर थे तिलक नायडू थे। फिर आके जब ये आगे हरियाणा मैच तो हरियाणा के बच्चे थोड़े 90 के लंबी में पैदा छोटा था बच्चा, हाँ हरियाणा का टारगेट था 270 रन, और हम लोग स्पिन बैटिंग में 45 पे 5 थे।
वो आया ड्रिंक्स में मेरे पास आए और उसका एक ही शब्द बोला कि सर किसी को बोलिए ना मेरे साथ खड़ा रहेगा, हम मैच जिता देंगे सर। आप 40 में 5 हो, आप 270 चेज कर रहे हो और फिर वो कहेगा कि हम मैच जिता कर दे देंगे सर, मैच जिता देंगे। वो लड़का 148 बनाया था, हम 10 रन से मैच आ रहे थे, 2 ओवर पहले आउट हो गया था। लेकिन उस इनिंग के बाद से फिर सबको दिखने लगा था कि वो जो है कुछ अलग ही करेगा। और उसके बाद उसने चैलेंजेस को खेला, इंडिया ए को खेला, इंडिया को खेला, लगातार वो खेलता गया। उसी साल सेम ईयर में रणजी ट्रॉफी को डेब्यू किया, 2 मैचेस खेले बट स्कोर नहीं कर पाया हमारा, फिर टीम से बाहर कर दिया गया उसको। 19 को कोचिंग के बाद मेरा असाइनमेंट बिहार क्रिकेट के लिए हुआ 23 में भेज दिया गया। तो मुझे लगा कि नहीं ये सब रख के क्या करेगा। मैं फिर रिक्वेस्ट किया एसोसिएशन से कि भाई आपको घर पे बैठा के क्या करोगे, आप ऐसा करो इसी में भेज दीजिए आप उसको और मैं हुई था समाप्त। जब भी आया इसी में मैच खेलने के लिए नया विकेट में मैच खेल रहा है, रेटिंग में वैभव आउट हो गए, बड़ा रियाज था कि नहीं मिल रहा है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के बाद क्या करे, बैटिंग तो हुई नहीं ढंग से। मैं जाना बैटिंग को बदल रहा, इंटेंट को कभी ना बदल, जो बैटिंग करता है उसी को रख जाकर खुल के उतना करेंगे रूल के मुताबिक मैच खेल सकते हैं। इसीलिए सेकंड इनिंग हम लोग फॉलो था हम लोगों का 125 आउट हो गए थे, 98 था लगभग और उसने जो बैटिंग किया सभी उठ के खड़े हो गए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग किया। और मेरा मानना था कि इस बच्चे को फ्री छोड़ो। हम लोग खास करके मैं जब भी स्टेट कोचिंग में था तो उसके टेक्निक पे बहुत कम बातें करता था उससे, उसके मानसिक रूप से कितना मजबूत हो सके वो आने वाले कल के लिए, वो देश के लिए खेले। उसके दिमाग में बस एक ही चीज फीड किया गया था कि तुम कंट्री के लिए बने हो, कंट्री में ही खेलोगे तुम। तो ये चीज बहुत स्ट्रांगली उसके दिमाग में था कि मुझे तो कंट्री ही खेलना है। और आज भी वही बात होती है कि तेरा एम तेरा गोल ये नहीं, तेरा गोल जो है वो देश के लिए खेलना है, देश के लिए मैच जिताने का। तो ये जो चीजें थी ये अंडर 19 से शुरू हो चुकी थी और वो आज तक जब भी मुझसे बातें होती है तो मैं इसको बस यही याद दिलाते रहता हूँ, तेरा प्रॉमिस, तेरा इंटेंट पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव मत आने दे। और आज भी वही काम कर रहा है वो, अपने बैटिंग को नहीं बदल रहा, अपने एटीट्यूड को नहीं बदल रहा, अपने इंटेंट को नहीं बदल रहा। आज सारा देश दुनिया देगा। बहुत सारे चेंजेस किए गेम में, लाइक जैसे सभी लोग आज बोलते हैं कि बैकलिफ्ट बहुत ऊपर है, बाहर से घूम के आता है। तो देखिए जब मैं खुद खेल रहा था तो मैं खुद बहुत डिफेंसिव प्लेयर था, क्योंकि हमारे ज़माने में तो गेम ऐसा था कि यदि आप एक बॉल एयर में मार देते हैं तो कोचेस जनरली आपको नेट से बाहर निकाल दिया करते थे, या उस दिन पनिशमेंट मिला करता था, या आप लिफ्ट मार के या अपी शॉट खेल के आउट हो जाते हैं तो ज़्यादा दौड़ाते हाँ, और बहुत शर्मनाक भी माना जाता था कि ये कैसा खेल रहा है, जैसे टेक्निकली इतना पुअर है। तो लेकिन जब मैं खेल रहा था तो एमएसडी हमारे बैचमेट है, हम लोग साथ खेले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और युवराज सिंह भी हमारे ही एज ग्रुप के हैं, उनके साथ भी रेस्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन के मैचेस में, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में खेलने का मौका मिला मुझे। तो मैंने एक बात गौर किया था कि ये लोग स्ट्राइक मतलब उनका डिफेंस भी, यदि आप नज़दीक से उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो जो डिफेंस भी करते थे तो उसमें वो पावर जनरेशन ऐसा रहता था कि यदि बॉल को छोड़ दिया है तो ऑलमोस्ट बाउंड्री तक रोल बैक करता था। और उन सब का एक यूनिक फीचर ये भी था कि वो उनका बैकलिफ्ट बिल्कुल वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता था और बैट का फ्लो एब्सोल्यूट स्ट्रेट था, जो बॉल आ रही है उसके पीछे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाया करता था। लेटेस्ट स्टेज में हमने हाशिम आमला को देखा, जिनका बैट पॉइंट से घूम के, लेकिन लास्ट मोमेंट में बिल्कुल वो सीधा हो जाया करता था। तो ये सब कुछ फीचर्स थे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो मैं अपने ज़माने में नहीं कर पाया था। तो बोले तो हर बच्चा ही एक तरीके का नया केस है और एक नया एक्सपेरिमेंट है।
आप एक फिक्स पैटर्न में कोचिंग नहीं करा सकते। हर बच्चे का अपना स्किल सेट होता है, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। तो एज ए कोच जिस बच्चे का आप देखते हैं कि जहाँ स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा निखारने का प्रयास करते हैं और ट्राई करते हैं कि एक ओवरऑल ऐसा गेम बनाया जाए जहाँ पे कि बच्चे का वो लूप होल एक्सपोज ना हो। तो वैभव जब आया तो जो भी उस समय उनका गेम था उसमें इन सब चीज़ों को इनपुट देते रहा मैं, जैसे बैकलिफ्ट हाई करने का, स्ट्रोक्स प्ले करते समय बॉडी पोस्चर्स क्या होना चाहिए, क्या फ्लो बनना चाहिए। देखिए आप सचिन के गेम को यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके हर शॉट को यदि ध्यान से देखें तो एग्जीक्यूशन के बाद उनका जो बॉडी पोस्चर्स बनता है सो ब्यूटीफुल लगता है। फोटो परफेक्ट हो रहा और परफेक्शन दिखता था उनमें। और मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। अर्ली स्टेज में जब हम लोग खेल रहे थे तो सचिन के ही क्रेज में क्रिकेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हमारे लिए तो एक तरीके से गॉड है। तो और मैं जनरली टीवी नहीं देखता, तो जब तक सचिन खेले तब तक मैच देखा और फिर वैभव अब खेल रहा है तो टीवी ऑन करके मैच देखने बैठता हूँ। तो उनके गेम को मैंने बहुत फॉलो किया और मैं हर बच्चे में प्रयास करता हूँ कि वो मैं अपने एफर्ट से वो परफेक्शन की तरफ बच्चे को ले जा पाऊँ, सो दैट कि देखिए सचिन तेंदुलकर टेक्निकली इतने परफेक्ट थे कि वो उस तकनीक के सहारे वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। कंप्लीट डोमिनेशन जिसको गेम का कहते हैं, टेक्निक के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू वो कर पाते थे। तो हर बच्चे को हम लोग यही ट्राई करते हैं कि ये क्वालिटीज़ उनमें ऐड ऑन करें। जितना भी मैं उनसे सीख पाया या अपने क्रिकेट के दौरान जो भी लर्निंग लेसन मुझे मिला, तो हर कदम पे मैंने वैभव हों या सभी बच्चे हैं ट्राई करता हूँ कि वो फीचर्स उनके बैटिंग में ऐड की जाए, चाहे वो बैकलिफ्ट हो, बॉडी पोस्चर हो, एग्जीक्यूशन का पार्ट हो, बॉल सिलेक्शन का बात हो। तो इन सभी पैरामीटर्स पे काम होता रहता है और वैभव के साथ भी लंबे समय तक काम हुआ। बाकी बच्चों और वैभव में यही अंतर था कि वैभव बहुत कंसिस्टेंट था अपने प्रैक्टिस में, और या तो वो मैच खेलता था या प्रैक्टिस करता था। और समस्तीपुर से पटना आना जाना लंबा सफ़र था और ये रेगुलरिटी मेंटेन करना, इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ था। फिर भी समहाउ संजीव जी ने वैभव के लिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन किया और हमारे पार्ट में ये था कि मेरे से जितना बन पड़ता था, जितना अभी मेरे पास वो आते थे, चूँकि वो इतनी दूर से आते थे तो मेरा ये काम था, मतलब लाइक आई वाज फीलिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि उनमें हर दिन कुछ नया ऐड किया जाए, कुछ नया स्ट्रोक किया जाए या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रोक है उसको और बेहतर कैसे करें या उसके नए डायमेंशंस को कैसे ओपन करें। जैसे कट मार रहे हैं तो अपर कट कैसे मारें, ठीक है, अब पुल मार रहे हैं तो उसको कैसे मारें, फिर ग्राउंडेड पुल, एयरबॉर्न पुल कैसे मारें, हेड का क्या पोजीशंस होना चाहिए। अब मान लीजिए पेस बॉलर में अच्छा हो गया तो स्पिनर पे कैसे करें, ठीक है, इन सारे डायमेंशन पे काम हुआ उनके। और आप देख रहे हैं अभी मैच स्टिमुलेशन चल रहा है, ऐसा सेशन उन्होंने बहुत किया। जब छोटे थे तो मेन तो बेसिक स्किल पे काम होता था, बट लेटर स्टेज में मैच सिनारियो पे ज़्यादा काम होने लगा। उनको टारगेट दिया जाता था 30 ओवर्स 40 ओवर्स का, लेकिन मैंने ये T20 के लिए मैं उनको तैयार नहीं कर रहा था। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि वो भारत के लिए रणजी ट्रॉफी खेलें, टेस्ट खेलें। लेकिन इस प्रोसेस से मैंने ये ज़रूर समझा है कि यदि तकनीकी रूप से कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी भी फॉर्मेट ऑफ गेम में एडजस्ट कर सकता है। अभी तो आप वैभव को T20 वनडे में देख रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा मौका मिल रहा है, वहाँ पे वो इस तरीके की करिश्माई बैटिंग कर पा रहे हैं, इतना रोमांचित करने वाला बैटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन आई एम 100% श्योर कि जिस दिन उनको रेड बॉल मिलेगा, ग्रेजुअली ही विल एडॉप्ट और उस लेवल से अपने गेम को मॉडिफाई कर लेंगे वो। ये क्षमता है उनमें क्योंकि उनके तकनीक पे भी बहुत काम हुई है, ठीक है। इंडिया रेडी है? एब्सोल्युटली रेडी है। अभी जिस तरीके का बैटिंग कर रहा है, आप इसी आईपीएल में देखें, पिछले आईपीएल में देखें, जिनको भी वो फेस कर रहा है वो तो सभी अपने नेशनल टीम के प्लेयर हैं, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार रहे हों, सूर्य कुमार यादव हों, बुमराह हों, हेजलवुड हों। पिछले साल भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 100 बनाया था, उसमें भी देखे सारे बड़े प्लेयर, सिराज, हाँ सभी थे। पिछले मैच में मुंबई में आपने देखा वो बुमराह के साथ लेफ्टी पेस बॉलर को ट्रेंट बोल्ट थे, उनको भी इजीली खेल रहे हैं और हिट कर रहे हैं। तो अपने परफॉर्मेंस उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही इज़ एब्सोल्युटली रेडी और ही इज़ गोना परफॉर्म देयर एज वेल। वो जिस लेवल के माइंडसेट के प्लेयर हैं, यदि वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन में रहते हैं, मतलब उनको जो उनका भी स्पेशलिटी है कि वो T20 और वनडे पे ज़्यादा फोकस की हो, तो वहाँ वो परफॉर्म करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मैंने बोला ना आपको कि वो ना बॉल के करंट को देख के खेलना है जो बचपन से सिखाया गया।
ना उसको बॉलर्स को देख के खेलना है। ये बात है क्योंकि वैभव जब बच्चा था तो ये उसके दिमाग में ये फीड कर दिया गया और मैंने बार बार उसको कहा कि अपने को छोटा मत समझ, क्योंकि जो भी प्लेयर थे, जो भी बॉलर थे, ये आज नया नहीं है कि वो जब 12 साल का था, 13 साल का था, तब अपने से कहीं बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में वो खेल रहा था और रन बना रहा था। तो आज उसका नतीजा है कि उसके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि मैं बॉलर्स को देख के खेलूँ या उसके नाम को देख के खेलूँ। अगर वो बॉलर्स को देखकर खेलता और उसके नाम को देखकर खेलता तो शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पाता। डोमेस्टिक क्रिकेट में बस एक ही चीज़ उसको बताए कि तुमको बॉल को देख के खेलना है, बॉलर्स को देख के नहीं खेलना, क्योंकि तुम्हारे से सब बड़े बड़े बॉलर होंगे, उम्र में बड़े होंगे और मैचेस के एक्सपीरियंस में बड़े होंगे, लेकिन उससे परवाह ना करके तेरा जो गेम है उसको खेल। तो ये जो ट्रेनिंग है ये नया ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए तो बचपन से शुरू था। ये 12-13 साल का था उस समय से ही उसको मैंने फीड किया हुआ था और आज उसका नतीजा है, कोई रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। सिमिलरिटी एक ये लोग अपने माइंडसेट में बहुत क्लियर हैं। जैसे एमएसबी शुरुआती दौर में खेलते थे तो मल्टी डेज में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे वो। हमने वो भी दिन देखा है जब उनको सेलेक्टर्स ने बोल दिया कि अब समय आ गया है आपका बाहर जाने का, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने कैसे कमबैक किया। हम लोग उस सभी टाइम के फ्रेंड रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा कि उन पे कितना भी दबाव रहा, कितनी भी असफलता उन्होंने देखी, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदला। उनका ये टारगेट था कि मैं हिटिंग करूँगा तो करूँगा, चाहे इसका जो कीमत मुझे देना पड़े, चाहे मेरा करियर यहाँ से बने या मेरा करियर डूबे, जो भी है वो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलूँगा और वो वही करूँगा। शुरुआती दौर में उनको सफलता नहीं मिली, खास करके मल्टी डेज मैचेस में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो खेले, मैच्योर होते गए, उन्होंने ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम में एडॉप्ट करना सीख लिया। हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन हो गए भारत के। वैभव में भी वो खासियत है कि इसी ग्राउंड की एक घटना है जब एक मैच स्टिमुलेशन के दौरान मैंने वैभव को बोला कि वैभव आप सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स पे फोकस करते हो, सिर्फ एयरबॉर्न शॉट्स मारते हो, ग्राउंडेड शॉट सिंगल डबल नहीं लेते हो। स्टेट मैचेस में 4 डेज मैचेस में आपको मोर देन 2000 बॉल डिलीवर होंगे, आप हर बॉल को नहीं मार सकते हैं, कि सिंगल डबल भी फोकस करो। तो उसने बोला सर जिस बॉल को छक्का मार सकता हूँ उस पर सिंगल डबल क्यों करूँ। तो ये उनके क्लियर माइंडसेट को दिखाता है। तो ये सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों का आप बैटिंग पैटर्न देखें, यदि उनको लगता है कि ये लूज बॉल है तो वो ऑल आउट जाएंगे ही, उसको मारेंगे ही मारेंगे, नो मैटर कौन बॉल डाल रहा है और कैसा विकेट है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी। और मैंने देखा जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो माइंड से बहुत क्लियर रहते हैं और उनको सेल्फ बिलीव रहता है कि हाँ वो कर सकते हैं और वो करेंगे ही। नॉर्मल प्लेयर को जनरली डाउट होता है क्या होगा, प्रेशर सिचुएशन है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लाइफ में सफल होऊंगा असफल होऊंगा। बट जितने इस तरीके के प्लेयर हैं क्रिस्टल क्लियर होते हैं वो माइंड से सेट से करना ही है, होगा ही और करना ही है। और ये इन लोगों का यूनिक फीचर है। देखिए आप लोगों के माध्यम से तो सबको पता चल ही जाता है कि पर्सनल मोमेंट्स होते हैं ना कि आप बैठे हुए हो घर पे टीवी में मैच देख रहे हो, उसने ऐसा शॉट मारा या 100 लगा दिया, 50 लगा दिया, होता है गर्व, एक भावुक मोमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा ही। हर एक बनाया हुआ उसका रन, हर एक उसका बनाया हुआ बड़ा इनिंग, हर एक बनाया हुआ उसका वहाँ पे परफॉर्मेंस मेरे लिए तो बहुत गर्व का क्षण होता है। और ये कभी कभी तो मुझे विश्वास भी नहीं होता कि मैं 10 साल एमएसडी के साथ रहा और अभी इतने बड़े मिरेकल के साथ मैं हूँ। वो एक तरीके मिरेकल है। तो अब जाके इस उम्र में एहसास होता है कि सब कुछ तो मेरे अगल बगल ही था, बस समझ का फेर था। एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा और एक अपना स्टूडेंट ही रहा। और इन दोनों में एक तरीके से बोलिए आप जो ड्रीम करते हैं क्रिकेट में अचीव करने का, मैं तो नहीं कर पाया, पर इन दोनों के थ्रू मुझे लगता है आई एम रियलाइजिंग माई ड्रीम। ठीक है, एमएस ने कर दिया पहले और अभी उनका टेन्योर ख़त्म भी पूर्णतः नहीं हुआ तब तक ये नया मिरेकल आ गया है। तो मेरे लिए तो दोनों ही मतलब अनबिलीवेबल काइंड ऑफ सिचुएशन है। देखता हूँ तो कभी कभी खुद विश्वास नहीं। आरआर वर्सेस सीएसके के मैच को आप कैसे डील करते हो? जब हमेशा पुराने जमाने पे नए जमाने को हावी होना चाहिए वो अपग्रेडेड जमाना होता है।
तो एक्स जनरेशन को अब जेन एक्स जनरेशन पार करे, वो जो कर ही रहा है। आप देखें पिछले 2 मैचेस में सीएसके के आरआर जीता है और दोनों में वैभव का बहुत अच्छा योगदान रहा। पिछले मैच में आप देखें, पिछले साल के आईपीएल में वैभव जब हर बॉल जो खेल रहा था उस पर 9 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहे थे एमएसडी फील्ड सेटअप में। इस कारण वो मैच चला गया उतनी देर, नहीं तो यदि कोई और कप्तान रहता मैच वैभव बहुत पहले ही खत्म कर दिया रहता। तो ये एक ग्रेट कैप्टन और एक इमर्जिंग ग्रेट प्लेयर का जो क्लैश ऑफ टाइटन था वो आपने देखा लास्ट टाइम। और इस बार तो खैर एमएसडी नहीं थे, फिर भी वैभव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ। देखिए मेरा मानना है कि बार बार हम लोगों को यही बातें करते हैं कि जिस जगह पे गए हो और जितनी मेहनत करके गए हो उसको मेंटेन कैसे रखना है, तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कर सकते हो। ये एक सीरीज़ में अच्छा खेल गए या दूसरे सीरीज़ में अच्छा खेल रहे तो एक मैच के लिए मत सोच, कितना लंबा खेल सकते हो वो बार बार उसके बात होती है। जिस लेवल को आज वैभव ने पहुंचा है, जिस लेवल पे पहुंचा है उसको मेंटेन कैसे रखना है इस पे बात होती है। वो भी एग्री करता है और ये एक फ्लूक नहीं है कि एक 100 बन जाना। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस आईपीएल में भी वैभव के 100 बड़े 100 आएंगे और वैभव मुझे लगता है कि जल्दी ही इंडिया के लिए एटलीस्ट T20 में जल्दी ही आएगा, वो जल्दी ही आएगा और मैचेस के लिए तैयार है। वो आना भी चाहिए उसको और मुझे लगता है बीसीसीआई इसको देख रही होगी और निश्चित तौर पे मौका देगी। ब्रायन लारा बिल्कुल सही बोले। वो ब्रायन लारा ने संन्यास कब लिया था? 2006-7 उसके आसपास। ब्रायन लारा का बैटिंग कहीं देखा होगा वैभव ने, क्योंकि उनको पसंद तो है, वो शुरू से ये बात डे 1 से वो ये बात बोलते हैं। और आप गौर करें ब्रायन लारा का भी कुछ बैकलिफ्ट वैसा ही था। दूसरा, आप जिस इंटेंट से ब्रायन लारा डोमिनेट करते थे बॉलर्स पे, सामने की टीम पे, वो वन साइडेड गेम कर देते थे, वो माइंडसेट इसका भी है। तो उसने रोल मॉडल को अपने जीवन में उतारा है और चाहे वो गेम के सेंस में हो, चाहे वो उनसे इंस्पिरेशन लेने के सेंस में, हर चीज़ में। और उनका रोल मॉडल तो रहे ही हैं, अर्ली स्टेज से उसके रोल मॉडल रहे। मेरे तरफ से बस एक ही सलाह था कि जो भी करना है एक दायरे में रह के करना है। और दूसरा चीज़, किसी भी कीमत पे ग्राउंड मत छोड़ना। अगर आप क्रिकेट को छोड़ के आप दूसरा कुछ करने लगोगे, ग्राउंड छोड़ के चले जाओगे, दूसरे किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगे ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे आपके क्रिकेट पे फ़र्क पड़ेगा। और ये भली बात ही वह भी जान रहा है इस बात को कि सर क्रिकेट ही है और उसके दिमाग में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। ना किसी स्पॉन्सर के बारे में सोचता है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन आएगा मेरे पास, कौन नहीं आएगा, आईपीएल में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, किसने मीडिया में क्या लिखा नहीं लिखा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो पहले से, जब मेरा ये मोबाइल है उसको लेना के लिए था पहले से, तो मैंने उसको लिखा भी था और बोला भी कि 2 साल तो इस मीडिया से दूर हो जाए, बहुत आगे बढ़ जाओगे। और मुझे लगता है कि अभी तक उस पर नज़र नहीं लगी है उस हिसाब से। और स्मार्ट बच्चा है, बहुत स्मार्टली काम कर रहा है। क्रिकेट पे फोकस उसका है, क्रिकेट से दूर नहीं रह सकता। बैटिंग करना, बॉलिंग करना वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्रिकेट से दूर नहीं रह सकता। और आप देखिएगा यही चीज़ उसको बड़ा बनाएगा। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन काम था उसको मानसिक रूप से तैयार करना। वैभव जो रणजी ट्रॉफी में भी फेल हुआ तो काफ़ी डिप्रेस था, टीम से बाहर हुआ, काफ़ी डिप्रेस था। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हाँ टीम में आया और टीम से बाहर हुआ। वो इसको ओवरकम कर सकता है और उस तरह की मेंटालिटी और उस तरह की मानसिक रूप से मजबूती उसको मिल चुकी है कि हम लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं उसको कि बस एक इनिंग की बात है, तेरा बैटिंग ख़राब नहीं चल रहा, तेरा इनिंग ख़राब चल रहा है। एक इनिंग में ख़राब आउट हो गया, एक इनिंग में अनफॉर्चुनेट आउट हो गया, बैटिंग तेरा वही रहेगा 2 मैच के बाद, 3 मैच के बाद या 10 मैच के बाद। तो इस बैटिंग को फेलियर के वक्त बदलना मत,
रन्स आएंगे, रन्स के पीछे भागोगे तो रन मिलेंगे नहीं, उसके पीछे मत भाग, तू अपना बैटिंग कर। और तभी मैं उसको हमेशा इसलिए हमेशा ये कहता था मैच के पहले कि तेरा टारगेट रन बनाना नहीं है, तेरा टारगेट है 100 बॉल खेलना। मुझे मालूम है जिस दिन वो 100 बॉल खेलेगा वो अलग ही दिखेगा। तो बॉल्स खेलने का टारगेट आप अगर किसी को देते हो, रन बनाने का प्रेशर हटाते हो उसके ऊपर से, तो ऑब्वियस है कि ओवरकम करेगा, एक मैच के बाद नहीं, 2 मैच के बाद नहीं, लेकिन आपको उसको बैक करना पड़ेगा, उसको खुद को बैक करना पड़ेगा और आपको उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं। जैसे रियान पराग ने कहा कि अगर वो 0 भी मारता है तो मैं उसको सारे के सारे मैच खिलाऊंगा। सेम चीज़ है, आप अगर वो 2 मैच खराब भी गया तो मैं उसको तीसरे मैच में भी लेके आऊँगा, और मैंने किया भी ऐसा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग कॉन्फिडेंस देता है। सर हैं पीछे, मेरे पीछे मेरी टीम है, तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को। जब प्लेयर डाउन चलते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उस समय उसको ज़्यादा बैक करवाओ। अभी तो बताया आपको वो छक्के वाला इंसिडेंट कि आप उसको कितना भी दिन भर नेट प्रैक्टिस कराएं या उसका ड्रिल्स कराएं, वहाँ पे वो बिल्कुल ही ग्राउंडेड शॉट्स खेलेगा, जो बोलेंगे वो करेगा। और जैसे उसको फ्रीडम मिलता है, सेंटर विकेट पे जाता है, फिर वो अपना अप्लाई करता है उस सीखे हुए स्किल सेट को। कैसे वो अपने बड़े बड़े शॉट में कन्वर्ट कर पाए, उसके लिए ओवरऑल एनी टाइम वो फोकस रहता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। और देखिए कोच और स्टूडेंट में एक दायरा रहता है। हम लोग एक पिता और पुत्र में जिस तरीके का दायरा रहता है ना, वैसे ही तो हमारे पास बहुत रोमांचक कहानियाँ नहीं होंगी, हाँ, लेकिन बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है और पूरा का पूरा क्रिकेट पे ही। मैंने आपको बोला क्रिकेट के दायरे से बाहर मैं नहीं जाता, तो बस टेक्निक, हार्ड वर्क, फोकस, मैच प्रैक्टिस, मैचेस। मीठा कम करो। हाँ, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं। छोटा बच्चा है, अब आप उसको आइसक्रीम खाने से मना कर दें, खाना ही खाने से मना कर दें, वो IPL खेल रहा अलग बात है, बट है तो बच्चा ही ना। उसके भी उस उम्र के बच्चे तो पिज़्ज़ा बर्गर में डूबे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक में। उसने गलती से गलती से क्या, प्यार से भी 2 बार मिठाई खा लिया तो क्या किया, वो इतनी बड़ी गलती नहीं। और ओवर द पीरियड वो मैच्योर जैसे जैसे होगा, वो आप देखें पहले से उसने अपने फिटनेस को बहुत इम्प्रूव किया, चाहे वो फील्डिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, बैटिंग हो, हर जगह वो अपने आप को धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। और अच्छा वो खेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप दुनिया का सारा बोझ उसके माथे पर डाल देंगे। उसको भी स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसको भी अपने इस टाइम बचपन के टाइम फेज को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी आप देखते हैं सभी लोग बोलते हैं बचपन के दिन फिर वापस नहीं आते हैं, तो वो खास करके बचपन के दिन यदि ऐसे महान हो तो हाँ, इससे खुशी का क्या बात है। अब थोड़ा उसको जीने देना चाहिए। वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसको देखने के लिए राजस्थान रॉयल्स के हैं वहाँ पे डाइटिशियंस वगैरह, NCA जाता है, वहाँ रहते हैं। बहुत फोकस्ड हो गया पहले से, पर नेचुरलिटी आदमी को मेंटेन करना चाहिए अपना। Bihar teammates where he made his first class debut and is again has taken the domestic cricket by storm as well. So ताजपुर आए, समस्तीपुर आए और वहाँ पे हमें मिले वैभव सूर्यवंशी के चाचा, जिन्होंने बचपन से उसका जो ये क्रिकेटिंग जर्नी है सब कुछ देखा है। राजीव कुमार सूर्यवंशी जी के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पीछे उनका घर है वैभव का। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, धन्यवाद। एक बात बताइए, जब आपने पहली बार वैभव को बैट पकड़ते हुए देखा था, आपने सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक बंधु लोग इनको देख रहे हैं उससे मैं नमस्कार करता हूं। और यहाँ तक वैभव की खेल प्रतिभा की बात है, तो जिस प्रकार का उस बच्चे में मैंने प्रतिभा देखा, खेलने के प्रति जज्बा, लगन और परिश्रम और मेहनत देखा बचपन में, जो उनके पिताजी जिस तरह से उसे खिला रहे थे, कि वो अपने समय के खुद प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके थे। तो उन्होंने जब 3-4 साल का जब वैभव हुआ तो उनको खुद बच्चा में खिलाने का काम करना चालू किया। लेकिन जब बच्चा में देखे नहीं, इसमें तो एक विलक्षण प्रतिभा है और क्रिकेट के प्रति जुनून है और लगन भी है, उससे इस खेलने के स्टाइल से योग्यता से हम लोग को लग गया था कि आगे चल कर वैभव जो है क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन करेगा और ख्याति प्राप्त करेगा, और वैसा भी दिखाई भी दे रहा है और आगे भी दिखाई देता रहेगा। नहीं, सरप्राइज नहीं है, वो उसका नेचुरल है। वो शुरू से ही जब छोटा भी था तो उसके पास शॉट शुरू से ही थे,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरप्राइज है। वो बोलता ही है कि मैं बॉलर कौन है उसको मैं नहीं देखता, मैं बॉल को देखता हूँ। तो वही से, तो इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं। वो ऐसा ही बैटिंग किया है और वैसा ही एटीट्यूड रखता है। और सबसे पहले कब देखा था वैभव को? क्या कहानी है उसकी? आप जब मिले उससे कितने साल का था? कौन से साल की बात है? कौन सा टूर्नामेंट है? सरप्राइज्ड हुए थे कि भाई इतना छोटा सा बच्चा है, इसमें कुछ दमखम? जब जोनल का मैच चल रहा था, सीनियर जोन का मैच चल रहा था, तो ये पूर्णिया में मैच चल रहा था, तो वो दूसरे जोन से खेल रहा था। उसी समय इसको मैं पहली बार देखा था। ऐसे नाम सुनता था कि मतलब एक 16 में देखता था हमेशा, 19 में भी 300 रन बनाया, हमेशा हर जगह रन बनाया, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी रन बनाया। तो मैं पहली बार उसको देखा था, तो वहीं मेरे को मिला। पहला इनिंग में तो रन नहीं किया था हम लोग, मगर दूसरा इनिंग में 65 या 70 करके रन बनाया था। उसी समय हम बोले थे कि भाई दम है इस लड़के में। और फिर जब दोस्ती बढ़ी, जब सेम टीम में खेलने लग गए, तो क्या कैरेक्टर दिखा? क्योंकि बच्चा है, मतलब हम बच्चों को क्रिकेट मैदान में ज़्यादा सीरियसली सीनियर प्लेयर्स नहीं लेते। जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं वो साइड में ही रखते हैं कि तू मजाक है, तू अभी तक सीरियस नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने जब देखा, जब सेम ड्रेसिंग रूम में आए, बातचीत हुई, जान पहचान बढ़ी, क्या कैरेक्टर निकल के आया? तो उस समय बच्चों वाली तो हरकतें करता ही, बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो करेगा ही। बट उस समय क्या था कि उसको भूख था बैटिंग का। मगर अगर क्या होता था कि अगर नेट्स ख़त्म भी हो जाता तो मेरे को बोलता था भैया मेरे को थोड़ा बॉल डाल दीजिए आप। तो उसको शुरू से ही वो था, और बाहर भी थोड़ा वो था, नटखट था, मगर क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा सोचता था। निश्चित क्या है कि जब वो पैदा लिया था 3-4 साल का, उसी समय से उसको बल्ला और बॉल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आप महाभारत में देखिएगा, जब स्वयंवर होता है द्रौपदी का, अर्जुन को सिर्फ मछली का आँख दिखाई देता है, किसी को मछली भी दिखाई देता था। इसी तरह उसका लक्ष्य था क्रिकेट, और बॉल ही उसका लक्ष्य था। और वो तो मैं भी बोला कि उसकी एक विलक्षण प्रतिभा थी, खेलने के प्रति जज्बा था। और वो देख करके लग रहा था कि ये बच्चा मतलब जन्मजात बुझे की योग्यता लेकर ही वो निकला था, या उसको गॉड गिफ्ट कहिए या जो कहिए। और उनके पिताजी का जो उनको सिखाने के प्रति जो समर्पण, निष्ठा, तन मन धन जो समर्पित किए, और जिस तरीका से उनको क्रिकेट सिखा रहे थे, उसको देख करके लग रहा था कि ये करेगा। और उन्होंने अपने पिताजी के उस स्वप्न को सच साबित करके दिखाया है। और अभी भी जो वो खेलता है, इतना जोर बोलता है कि बॉलर को मैं नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ बॉल को देखता हूँ। का नेचुरल है ये। अगर पहली बॉल तो ही मारते हैं, पहली बॉल, या रणजी ट्रॉफी का मैच हो या T20 का, ये चौके और छक्के पहली बॉल मारेगा। इसका पहले बॉल पे हो रहता है कि मैं बॉलर पे डोमिनेट करूं, बॉलर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दूं। तो इसका जो नेचुरल, जो हमेशा प्रैक्टिस करता है, जो नेट्स में करता है, वहीं पे वो अप्लाई करता है। अभी देख रहे हैं क्रिकेट खेल में कोई भी ऐसा विश्व स्तरीय नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी का नाम लें, देखें कि IPL में पहले गेंद पर भी उन्होंने छक्का मारा, और उनके ओवर में 13 रन मारा, 2 छक्का मारा। और IPL का जब आगाज किया था ये डेब्यू, तो पहला गेंद पर ही शार्दुल ठाकुर पहले गेंद पर छक्का मारा था। और सबको लगा कि और मतलब इसी तरह लग गया होगा, अनोखा इसी तरह हो गया होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बाद बोल्ट के गेंद को भी, और फिर शार्दुल ठाकुर के गेंद पर जो मुंबई से जो मैच हुआ है, जिससे मुंबई को हराया, मात्र 13 गेंद में 39 रन इन्होंने मारा था। बहुत फास्टेड खेल रहा था, तीनों के पहली गेंद पर छक्का मारा। और अभी हेजलवुड का भी आप देखे हैं तो, या भुवनेश्वर कुमार का भी देखिए, अभी उतना अच्छा बॉल था, हम देख रहे थे बॉलिंग, बहुत अच्छा योड़कर उन्होंने डाला, लेकिन चौवा के लिए सामने निकाले हैं RCB के खिलाफ। तो ये हम तो कहते कि वैभव बॉल देखता है, खिलाड़ी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। या बुमराह जी हो चाहे जो हो, अभी देखिएगा अंडर-19 वर्ल्ड कप में मात्र 76 गेंद या 75 गेंद 175 रन बनाया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। और IPL का सबसे तेज शतक भारतीय बल्लेबाज के रूप में सबसे कम उम्र में मारने वाला ये, मतलब इसके नाम अनेकों विस्कृतिमान क्रिकेट जगत में है। और हर चीज में सबसे कम उम्र का तो इसको लगा हुआ ही है। वो सबसे कम उम्र का, सबसे कम में IPL खेलने वाले, सबसे कम में रणजी खेलने वाले, सबसे कम में IPL शतक मारने वाले, IPL में वर्ल्ड का नंबर 2 बैट्समैन, शतक मारने वाले। अभी देखे लगातार 2 और शतक मात्र 15 गेंद में, एक 15 गेंद में 53 रन, और एक 15 गेंद में और शतक भी मारा है। और अगर मौका मिलता तो ये 29 या 30 गेंद में शतक भी मार देता है। जो इससे खिलाफ जो खेले हैं
आरसीबी के खिलाफ, जो उसका खेलने का टैलेंट था, वो रिकॉर्ड तोड़ने के ही चक्कर में करा गया, तो शतक तो सरेआम बात था, क्योंकि जिस प्रकार उसने अपना स्ट्राइक रखा था, तो तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं था। और उसका देखिए परिणाम कि जब अवार्ड मिला बेस्ट स्ट्राइकर का, बेस्ट सुपर सिक्स का, ऑरेंज कप का, प्लेयर ऑफ द मैच का, सब अवार्ड वैभव को मिला। और पिछले सीजन में भी इसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था, और वर्ल्ड कप में भी ये जीत के आए, एशिया कप में भी इनका मतलब इनका परफॉर्मेंस जो है खेल के प्रति दिन पर दिन निखरता जा रहा और निखरता रहेगा। यही उसके लिए मेरे शुभकामनाएं। साथ ही वैभव को निकालने में उससे परिवार के तो माता पिता आरती सिंह और संजीव सिंह का अहम योगदान है। प्रथम पाठशाला बच्चे का माता पिता ही होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आगे उससे कोच जो है समस्तीपुर के ब्रजेश झा जी हैं, खास करके मनीष ओझा जी पटना के जेनेक्स के हैं, और हमारे बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो राकेश तिवारी जी हैं, राहुल दरविश सर हैं, विक्रम राठौर जी हैं, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो भी प्रबंधन करता है, मैं इसके प्रतिभा को निखारने में उनका भी हम अहम योगदान मानते हैं। और उन लोगों को भी इस प्रतिभा को ऊपर ले जाने में जो उनका मतलब सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद देता हूं। और साथ ही माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, इनकी खेल प्रतिभा को, इनका अनोखा खेल को देखते हुए, उत्कृष्ट बल्लेबाजी को देखते हुए, अकल्पनीय बल्लेबाजी को देखते हुए, जो इनमें विलक्षण प्रतिभा थी क्रिकेट के प्रति, इनको सम्मान देने का काम किया। अभी हाल फिलहाल बालवीर पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, कैसा लगा था तब वो मोमेंट? बहुत गौरव और सम्मान की बात थी कि हमारे भैया सर वैभव से मिले और शाबाशी दे और बोले वो कि जो इससे पहले जो आईपीएल में जो शतक मारा था, मोदी जी बोले वो खेलने वाले के लिए एक प्रेरणादायक वर्ड है कि जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बोले कि वैभव आपकी प्रतिभा को देखकर आने वाले बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, खेल मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, राकेश तिवारी जी और का भी धन्यवाद देता हूं कि इससे पहले भी 10 लाख का इनाम उन्होंने दिया वैभव खेल प्रतिभा को देखते हुए, और हाल फिलहाल 50 लाख का इनाम दिया। इसलिए इतना बड़ा मुकाम जो अभी वैभव को हासिल हुआ क्रिकेट जीतते हुए, और आगे जो होता रहेगा उसमें हम सभी का योगदान मानते हैं, सभी को शुभकामना देते हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मैं उम्मीद और आशा कर रखता हूं कि आने वाले समय में उसको भारतीय टीम में खिलावे, और उम्मीद और आशा है कि निश्चित रूप से इसी प्रतिभा को देखते खिलाएंगे। इसके लिए मैं उन लोग से आशा और विश्वास रखता हूँ। हमको लगता है कि जैसे बैटिंग कर रहा है उसको तो इंडिया खिलाना चाहिए। हमको लगता है नेक्स्ट टूर में शायद उसको होना चाहिए इंडिया टीम में, जिस तरह के वो कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। राजीव जी, क्रिकेट एक सस्ता स्पोर्ट नहीं है। बैट पैड सारे इक्विपमेंट्स पैसा लगता है। यहाँ से पटना आप लोग जब जाते थे, संजीव जी उनको लेकर जाते थे, दूर है, 3 घंटा लगता है, समय लगता है। वो जो स्ट्रगल रहा, हार्डवर्क रहा, वो जो एक सैक्रिफाइस रहा, इस घर ने, आप लोगों ने, पूरे परिवार वालों ने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसकी कहानी अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आसान नहीं होता घर वालों के लिए। निश्चित, क्रिकेट जो है बहुत महंगा खेल है, ये अभी आप भी बोले और हम लोग भी देखते हैं। पैड से लेके बॉल से लेके जितना भी इसका जो भी आइटम आता है कॉस्टली आता है। एक गेंद का ड्यूज का कीमत 400-400 रुपये पड़ता है। और जब ये बच्चा, आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, जब बच्चा यहाँ खेलता था तो प्रतिदिन 2 से 3 गेंद जो है कम से कम रिजेक्ट हो जाता था। और इस एरिए के जितने भी टॉपर बॉलर थे जो अपनी प्रतिभा गेंदबाजी में दिखाना चाहते थे, भैया सभी को बुलाते थे। यहाँ तक कि उनका मेंटेनेंस जो होता है, हमारी भाभी तो खाना पीना नाश्ता, भैया बाहर का कोई बच्चा अगर आपके यहाँ बॉलिंग करेगा तो उसका थकावट होता है, तो उससे तो एनर्जी चाहिए, तो ये सब व्यवस्था हम लोग कर देते थे। उसमें भी खर्चा था। उसके बाद बैट भी महंगा आता है, बॉल भी महंगा आता है, और ये पिच भी जो देख रहे हैं ये सब भी महंगा है। ये सब करके तब हमारे यहाँ सुबह शाम खिलाड़ी लोग 8-10 आते थे, हम उसका व्यवस्था करते थे। और उसके बाद सुबह में 5 बजे मॉर्निंग में पटना अपना गाड़ी स्कॉर्पियो से जाना आना, लगभग 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर का जर्नी। सभी आदमी का वैभव के साथ 3-4 बच्चे भी यहाँ से बॉलर सुसली जाते थे। वो तो जहाँ वो जेनेक्स एकेडमी जहाँ वो कोचिंग करते थे, वहाँ के कोच का तो अपना बॉलर रहता था, उनका नाम है मनीष ओझा जी। तो वहाँ तो बॉलिंग करता, उनका अपना ही बॉलर था, लेकिन भैया सुसली अपना भी लेके जाते, अगर वो लोग भी थक जाए तो हमारा ही बॉलर वहाँ बॉलिंग, तो उसका भी हम लोग व्यवस्था करते थे।
जो लड़का का होना चाहिए, जो ये सब बोलने की बात नहीं है। और तब बच्चा यहाँ सुबह में निकलता था 5 बजे, 8 बजे वहाँ पहुँचता था, रात में फिर 8 बजे रात में आता था। ये सप्ताह में 3 दिन का क्रम चलता था। और इसके बाद जो पार्ट टाइम समय बचता था, सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, और कभी रात्रि में भी देखिए पूरा वेपर लाइट लगा हुआ है, रात्रि में यहाँ प्रैक्टिस किया जाता था। इससे बच्चे लोग को पेय पदार्थ, नाश्ता पानी, A to Z व्यवस्था हमारे भाई साहब करते थे। तो इसमें आर्थिक परेशानियां तो आई, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा कंडीशन भी, मतलब हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, परेशानी आई। लेकिन चलिए, जब लगता है कि हमारा बच्चा कुछ आगे चल के कुछ करेगा, नाम करेगा, दिखाई देने लगेगा, तो आप उस चीज़ को भूल ही जाइए। तो परेशानी आई, लेकिन उस संकट को हमारे भाई साहब झेलते हुए आज उस आर्थिक संकट से भी अब निकल चुके हैं। और भविष्य में तो क्रिकेट है, तो जानते हैं क्या क्या होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पद प्रतिष्ठा पैसा सब है इसमें, नाम भी है, तो वो सब होता रहता है। कुछ देर आकर अफसोस करता था, बट फिर आके अपना उसका थोड़ा जॉली मूड है, थोड़ा हंसता था। तो हमेशा अपसेट रहेगा तो ड्रेसिंग रूम का भी माहौल ख़राब होगा। तो आउट होने पे उसको लगता था, फिर अब सोचता था कि अगले मैच में कैसे रन बनाऊँ, उसको रन बनाना है बस। उसको ये था हमेशा से कि मेरे से रन क्यों नहीं लग रहा है, मैं प्रैक्टिस सारा चीज़ सही कर रहा हूँ, मेरे को रन क्यों नहीं बन रहा है। तो ये ऐसे करके सोचता था। और तो मैं तो थोड़ा सा बाहर हुआ था, तो रोया भी था, बट उसका उसी समय 23 में इधर रणजी ट्रॉफी से वो बाहर हुआ, तो अंडर 23 के मैच खेलने चला गया। तो हम लोग के साथ ही ट्रेवलिंग किया था, क्योंकि हम लोग का मैच था इधर मेरठ में था, यूपी से, तो वहाँ तक गया था। और इसका मैच शायद उत्तराखंड में था, तो उधर से उधर चला गया था। सूर्यवंशी ऑफ द फील्ड कैसा है? मतलब जब क्रिकेट नहीं चलता, आप लोग हो 4-5 दिन बाद मैच है, तब कैसा है वैभव सूर्यवंशी? ठीक है, मजाक मस्ती करते रहता है अभी वो, और चिल रहता है ना, सोचता नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस उसको रोज चाहिए। उसको क्या है कि प्रैक्टिस उसको अगर मिल जाए कहीं भी, अगर उसको लग जाए कि यहाँ जाना है, तो वो बोलेगा चलिए भैया चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्योंकि इस साल रणजी ट्रॉफी के दौरान हम लोग का मैच कुछ बारिश के कारण वो हो जाता था, तो उसके जो कोच है मनीष कुमार सोनू, तो हम लोग उनके पास चले जाते थे प्रैक्टिस करना। देखिए, आधा दिन तो वैसे क्रिकेट हाँ, में निकल क्रिकेट में जाता है। जाता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी पर या मोबाइल पर वो क्रिकेट का जो होता है, यूट्यूब पर देखता है खिलाड़ी सबको कि कौन खिलाड़ी कैसे खेलता है, ये सब खेल को सर्च करता रहता है। जैसे बोला ब्रायन लारा जी के बारे में, अपना आइकॉन, चाहे युवराज सिंह का, तो ये सब, हालांकि ब्रायन लारा इनके टाइम में नहीं खेलते, लेकिन हर वो खिलाड़ी को टेक्निक देखता रहता है खेल में, कि कौन बैट्समैन किस तरह से खेलता है, ये सब उसका देखना काम है। और खाने पीने के प्रति उसका बहुत अच्छा रहता क्या है। है फेवरेट फूड, क्या है उसका? पहले तो वो चिकन उकन खाने का था थी, और हर चीज खाता हर है। चीज खाता है। हाँ, और उससे मम्मी भी मीठा जो, पसंद है? हाँ, बच्चा है, सब चीज खाता है, और बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का भी है, और उससे कहीं छल कपट नहीं। और सभी अभी को कैसा हो गया है, मतलब क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा जो पाता। पहले था हाँ। हम लोग के परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अभी वही है। वैभव क्रिकेट के खेल जगत में अपने ख्याति से अपने परम वैभव के शिखर को पहुंचा है, अपने नाम के अनुरूप काम किया है। वैभव नाम है, तो क्रिकेट अपना वैभव वो दिखाया है। और सूर्यवंशी वैभव सूर्य की तरह पूरे विश्व को, क्रिकेट जगत को प्रकाशमान भी किया है। इसमें कहीं तो होते हैं, लेकिन उससे अभी भी व्यवहार में या स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जो पहले था वही अभी भी है, सरल सहज मृदुल और कुशल व्यवहार का लड़का है, और सीधा साधा साफ लड़का है। घर वालों से भी आपने बातचीत तो की ही होगी, तो उनके घर वाले कैसे, क्या विजन है उनका? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो, समस्तीपुर से पटना 3 घंटे का वन वे का रास्ता इजी नहीं रहता, बट आपने जब उनको देखा हुआ है, तब आंखों में वो चमक दिखी है कि नहीं, हमारे बच्चे को कुछ बनाना है? कि क्या था कि उनके पापा भी पहले क्रिकेट खेलते थे, तो वो सोचे कि हम नहीं बने, मगर मेरे को अपने बेटे पे मतलब ध्यान देना, इसको क्रिकेटर बनाना है। तो शुरू से ही अपने घर में ही नेट्स वेट्स लगा के उसको प्रैक्टिस करवाते थे। फिर उधर थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिर इधर पटना लेकर आने लगे। तो वैसे जब बातचीत होती है, तब वो लगता है कि अरे रन्स नहीं बन रहे, या 100 मार दिया, कुछ अलग अलग इमोशंस आते हैं उनके तरफ से? नहीं, इमोशन जैसे क्या है कि रन नहीं बनता है, तो परेशान तो होता ही है कि रन नहीं बना है इस इनिंग में, बट बोलता है कि मेरा बात होता है तो बोलता है भैया अगला इनिंग में जरूर मारेंगे। हाँ, उसको ये चीज़ है कि अगला इनिंग में जरूर करेंगे। तो हमारे भैया संजीव सिंह जी बराबर सब गाइडलाइन करते हैं कि देखिए, ख्याति प्रतिष्ठा कुछ भी, लेकिन तुम्हारा जो गेम है, जो खेल है, तुमको उसी को देखना है, और उससे अलग नहीं भटकना है। या वो
कोई भी उम्र होगा वो बच्चा, उसमें एक संस्कार है, हम लोग का एक नैतिक संस्कार है माता पिता का, बाल बच्चा का, कि वो गार्जियन से कहीं भी बाहर भी रहेगा, वेस्टर्न कल्चर में भी रहेगा, तो गार्जियन से, अभिभावक से वो अलग नहीं जा सकता है। और हम लोग का अपना भी स्वभाव है कि हम लोग अभी तक अच्छे रहे हैं, कहने की चीज़ नहीं है। तो माँ बाप का संस्कार बच्चा में है, बच्चा सही रहेगा और आगे भी कुछ भी करेगा तो बगैर माता पिता के गाइडलाइन से, मार्गदर्शन से बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो गार्जियनशिप में ही रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा, ये हमारा उम्मीद है। वैसे भविष्य से क्या होता है इसको हम नहीं बता सकते। बिहार के लिए खेलते हुए आपने जब उनको शॉट्स लगाते हुए भी देखे, सैयद मुश्ताक में तो उसका सेंचुरी भी है, लग रहा है कि ये प्लेयर बिहार क्रिकेट के, जो कि अभी तक अपने कंट्रोवर्सीज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, अब उसको पॉजिटिव लाइट में भी ला सकता है। नहीं, ऐसा प्लेयर एक बिहार को चाहिए था, जिससे सबका, अभी क्या है कि सबको बिहार के प्लेयर पे नज़र है, उसके आने से बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और फायदा हो भी रहा है। और आप जो टीममेट्स हो, आप लोगों का भी अब थोड़ा सा एक विजन या हंगर बढ़ा है कि नहीं, अब ये बंदा जब 15 साल की उम्र में लगभग इंडिया, अब बोल रहे हैं लोग कि इंडिया खेलना चाहिए इसको, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लेवल, एक इंस्पिरेशन लेवल बढ़ा है कि नहीं, अगर हम लोग भी अब अच्छा करें तो बिहार क्रिकेट को लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें मौका देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि उसके कारण लोग बिहार की टीम को देखने लगे। अब हम लोग का रणजी ट्रॉफी नहीं, मगर एटलीस्ट T20 और वनडे में, वाइट बॉल में लोग हम लोग को उतना हल्के में नहीं लेता है कब किसके, क्योंकि इस साल हम लोग यूपी के टीम को मुश्ताक अली में हरा दिए, पिछले साल हम लोग इसमें विजय हजारे में दिल्ली के टीम को हरा दिए थे। और तो अभी बहुत सारे लोग का नज़र है कि नहीं, बिहार में भी दम है, बिहार के प्लेयर में भी दम है। एक एक ऐसा किस्सा आप लोगों को सुना दो जो वैभव सूर्यवंशी के बारे में शायद ही कोई जान पाए अभी तक। नहीं, किस्सा क्या सुना है, उसका तो हर दिन का किस्सा ही है। तो ऐसे ही क्या है कि हमेशा मजाक वजाक करते रहता है, और जैसे कि नेट्स में मेरे साथ हमेशा वो रहता है कि हम आपको मारेंगे, आज बॉल डालना, तो मेरा भी लगता है कि तेरे से नहीं लगेगा, तो उस करके हम दोनों में वो रहता है। और वो हमेशा क्या होता है कि नेट अगर ख़त्म होता है तो, या तो अगर हम अकेले भी रहें तो बोला भैया आप बॉल डाल दो हमको, मैं बैटिंग करूँगा थोड़ा, तो वो क्या हम दोनों में थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड है, तो एक दूसरे से वो चलते रहता है हम लोग का। थैंक यू सो मच हिमांशु अपने टाइम के लिए। नेक्स्ट टूर में इंडिया के लिए होना चाहिए कह रहे हैं आप लोग, बताइए आपको क्या लगता है। धन्यवाद राजीव जी आपके टाइम के लिए, काफ़ी व्यस्त हो आप इस टाइम आपको पे। भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार जो आपने उतना दूर कलकत्ता से चलकर हमारे घर पे आए, इसलिए मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you, जय sir. हिंद, जय भारत। So from a small town of Tajpur in Samastipur to here in Patna, hope you enjoyed this journey of Vaibhav Suryavanshi, the wonder kid who is taking the world cricket by storm. Debashis, we have spoken to his coaches, we spoke to his teammates as well, we went to his house. A wonderful journey. And if you have to put the entire story in a nutshell, what would you say? Means obviously we both enjoyed capturing the entire journey of Vaibhav Suryavanshi so far, and what an incredible story. He is definitely the wonder kid, and but the real challenge will lie from here on. Means how he copes up with the pressure, the media pressure. Obviously, every time he walks into the field with the bat, means there will be obviously people will expect him to score big runs. But let's hope, Shubhayan. Absolutely. And going by what his coaches, what his teammates have said, his childlike innocence will remain, but his lethalness with the bat, his devastating effect with the willow will continue. The year 2011, when this man from this particular region lifted the World Cup, this wonder kid was born here in Bihar, and now he's taking Bihar cricket, which has been engulfed in many controversies in the past. He has brought some positivity into Bihar cricket, and everyone here is just hoping that his story will motivate others to pick up the bat, pick up the ball, and take Bihar cricket forward. But for now, hope you enjoyed this video, his journey to IPL stardom. Drop a like, drop a comment. Let us know what you think about Vaibhav Suryavanshi. Subscribe to the channel and share it with your friends so that it reaches many more who wants to be the next Vaibhav Suryavanshi, or perhaps wants to take some motivation from his story. Thank you so much for watching.